राधा देवी जी गोयनका, Honorable President Shri Dilip Raj ji Goenka, Honorable Principal Dr. Devendra ji Vyas sir, Honorable Vice Principal and Head Department of Commerce, Dr. Ambadas ji Pandey sir, Honorable Resource Person of today's webinar, Mr. Siddhant ji Agrawal sir, the whole team of CPBFI, and all my dear friends, come students, a happy and enthusiastic morning to all of you. I, Dr. Rupa Gupta, Coordinator of Certificate Program in Banking, Finance and Insurance, welcome you in awareness webinar on Certificate Program in Banking, Finance and Insurance, organized by Srimati Radha Devi Goenka College for Women, Akola, Maharashtra, in collaboration with our MOU partner Bajaj Finserv. As the mission of our college is women empowerment through the economic independence for the betterment of society, and by considering this mission, our college has done MOU with Bajaj Finserv so that you all can be benefited from the various domains decided by this certificate course. So without getting much more time, I would like to invite Miss Madhuri Chandavani, who is the previous student of this certificate program in banking, finance and insurance, to introduce today's resource person, Honorable Mr. Siddhant ji Agrawal sir. Over to you, Madhuri. Madhuri? Yes, ma'am. Good morning, everyone. I am Madhuri Chandwani from RDG College, Akola. Thank you, Dr. Rupa Gupta, ma'am, for giving me this opportunity to introduce our today's special guest speaker. It gives me an immense pleasure to introduce and welcome our today's speaker, Mr. Siddhant Agarwal, sir. I am so excited to introduce you, sir. Why I am excited? Because your talk is very relevant to all of us, shall give us a talk about CPBFI program. So, just a brief background about Mr. Siddhant Agarwal, sir. Sir is a very versatile personality in the corporate sector. Siddhant sir has more than 17 years of rich experience in the field of finance. He is the co-founder of Microfin Learning Solutions Limited and an NISM CPE trainer for mutual funds and equity derivatives. Sir has completed his PG in MBA in Finance and MCOM. He is certified financial planner, chartered wealth manager, and currently pursuing certified financial analyst from US. Sir is a financial coach, passionate learner, innovative, and believes in disciplined execution of ideas and strategies. Sir has worked for various companies like Ventura Securities Limited, IL and FS Investmart India Limited, Reliance Edge Academy, and last job was with ICICI Direct Center for Financial Learning as a senior knowledge manager, Pune and Mumbai. In the same manner, till date, conducted more than 1100 workshops and seminars for various organizations such as NISM, CIEL, NSE, BSC, ICICI Securities, NJ India, ICOFP, Ambition, AAFM, LIC, and etc. And he has conducted and delivered more than 400 awareness programs, that is IAP. He is a trainer for Bajaj Finserv Limited pertaining CSR trainings. In the same way, he is the management development faculty for public sectors undertakings. He is
a good orator and regular contributor of articles in financial magazines and newspapers. Sir has conducted various programs on topics like financial planning, financial mathematics, foundation in equity, beginners, F&O derivative strategies, debt and alternative investment, commodities, mutual funds, etc. He imparts training for CFP, CWM, equity and mutual funds, and soft skills for corporates. He is a guest faculty for management college institutes like Pomba, Symbiosis Institute of Management, Lexicon, Sinhagar Institute of Management, and etc. So, this is all about the wide experience profile of Mr. Siddhant Agarwal sir. So, without any further ado, let's give our today's speaker a round of virtual applause to Mr. Siddhant Agarwal sir. Now over to you, sir. Thank you, Madhuri. That was very, very nice of you. Thanks for giving that elaborative description. I am not that a versatile personality. I want to be humble and polite with you guys. मैं आप लोगों के जैसी जो है स्टूडेंट ही हूँ, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करते रहता हूँ. Okay, चलो. Thank you, Madhuri. Thank for this wonderful, I would say, introduction. So once again, a very, very good morning to all my lovely friends. Welcome to this program of this, I would say, briefing about the CPPFI. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कॉलेज में आके आप लोगों से बात करके, और अगेन मुझे वो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, आंचल, माधुरी एंड ऑल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई लव टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस, बिकॉज पता नहीं क्यों है आपके कॉलेज में जो एक एनर्जी लेवल है ना, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है. राइट? सो अगेन आई एम हियर एंड वी वांट टू इंटरेक्ट. what are the possibilities going ahead. So मैं चाहूंगा कि हम सब जो है ना इंटरेक्ट करें. इट शुड नॉट बी आई वुड से मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग. आई एम हियर टू इंटरेक्ट विथ यू. अभी जो भी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, वी हैव जस्ट केम आउट ऑफ अ पैंडेमिक लॉकडाउन एंड वी आर वेरी मच वरीड अबाउट अ करियर सिचुएशन. सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, what all things we need to focus on that thing we need to discuss. तो आपके मन में जो भी चल रहा है, whatever is coming into your mind, कि सर ऐसी सिचुएशन है, क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए. सो बी एक्सप्रेसिव. आप पूछेंगे, कुछ डाउट्स अपने पुटअप करेंगे, सो माइट बी आई वुड बी द राइट पर्सन टू एड्रेस दोज डाउट्स. राइट? सो आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम यू गाइस. एंड मैं ऐसा नहीं कि कोई एक लेक्चर देने आया हूं, मैं आप लोगों से बात करने आया. सो वुड यू बी इंटरेक्टिंग विद मी? यस और नो? यस. Yes, sir. Great. Yes, sir. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. मुझे एक बताइए कि जैसे एक कंफर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट टू जस्ट आस्क यू, ये जो आगे जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, या ब्लेंड में करें? कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. कॉम्बिनेशन सर. कॉम्बिनेशन. चलो, ग्रेट. वो क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन में जो है ना कनेक्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है. दैट्स व्हाई जो है वी वुड यूज अ ब्लेंडेड लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश. राइट? सो लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. I hope this is visible to you all guys. Yeah, and I would request all the participants कि chat के through हम interact करेंगे, है ना? तो कैसा होता है, कभी कभार जो है आप सभी लोग जो है अनम्यूट करके बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है who is speaking and I am not able to answer and understand what you are speaking. So if we interact through chat, आप chat में पूछिए और मैं आंसर chat जो है vocally दूंगा. राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. See, we did first batch in your college last financial year. So that was a very, very, I would say, participative batch. और मुझे जो पूरी बजाज टीम से जो है जो फीडबैक मिला है कि इतना इंटरेक्टिव, इतनी enthusiastic और इतना full of energy जो है बैच हमने आज तक नहीं देखी है. So that's why we are very, very much excited in coming again to your college. So we just want to tell you, this is a certification program in banking, finance and insurance. And the bottom line of this program is that where potentiality meets opportunity. You individuals as a student have got huge potential. आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बस आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. And this is the kind of opportunity we are trying to offer you, and you need to grab this opportunity with both of your hands
क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन में वैसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आ रही है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। फाइन, वुड यू एग्री ऑन दिस वन? या चलो अब Yes, स्टार्ट sir. करते हैं। सी दिस वन, व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे? फाइन, सो देखो बच्चों, अभी जो है आप लोगों का ऑलमोस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? एंड you have started thinking ki and the moment I complete my graduation or post graduation, now I want to look out for some kind of a job and I want to transit from a learner to earner. तो देखिए आप जो है ना मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। ये जो ट्रांजिशन है ना फ्रॉम लर्नर टू अर्नर, it is the biggest transformation which is happening in your life. It is the biggest transformation. सबसे बड़ा चेंज है आपकी लाइफ का कि अभी तक जो है सभी चीजें जो है केक वॉक थी आपके लिए, मम्मी पापा ने सभी चीजें आपके सामने की सामने रख दी है। अब आप जो है रियल वर्ल्ड को एक्सपोज होंगे। फाइन, यू वुड बी जॉइनिंग अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड देन यू वुड कम टू नो how much difficult it is to earn. So it's a big transition from learner to earner, right? And we all are eager for this transition from becoming an earner to from a learner. So before we transit from this level to this level, हमें एक बार चेक करना होगा कि आज हम कितने रेडी हैं, the state of readiness for this transition. And the next thing we want to see कि ठीक है, I am looking out for a job, I am prepared for that kind of a transition, but what is the industry scenario as of today? आज इंडस्ट्री में किस तरह के जॉब की रिक्वायरमेंट है, फाइन, किस तरह के जॉब्स की डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी अवेलेबल है। So I should know the overall competition, the demand, supply and every other thing, and on that basis I need to upskill my I would say check in my readiness कि आज की competition के हिसाब से मैं कितना रेडी हूं या कितनी रेडी हूं। फाइन, फर्दर you have analyzed the industry, then you have to identify your path to success, and CPB-FI as a certification is the first step to achieve the career which you have always been looking out for. Okay, so let us just start up. Anyone who wants to ask something? Sure. Okay, now first and foremostly, learner to earner. मुझे बताइए आप में से कितने बच्चे जो है, कितने स्टूडेंट जो है अपने डिसीजंस खुद लेते हैं? You take your decisions on your own. How many of you do take your decisions on your own? Give me a yes or a hands up. Yes, Chaitali is saying very good, very good. Yes, anyone else? Who all? Mansi is also saying, Priya is also saying, Vaishnavi, Apurva, Farheen, Pooja, Neha, Pratiksha, Aanchal, very good, bang on. That's what I was expecting from you. You have matured enough, you have started taking your decisions on your own, right? But एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, अगर ये पैसे से रिलेटेड डिसीजन है, मॉनेटरी डिसीजन है, से सपोजिंगली आपको जो है कोई चीज अपने लिए खरीदना है, या से सपोजिंगली कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है, उसकी फीस पे करना है, या आप में से मन में है कि मम्मी पापा के लिए कुछ मुझे खरीद के लाना है, तो क्या इस तरह के मॉनेटरी फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली ले पाते हैं या इन कंसल्टेशन विथ योर फैमिली ओनली? कैन यू टेक दिस डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियल डिसीजंस? यस और नो? नो सर, विथ फैमिली कंसल्टेशन ओनली। इट डिपेंड्स कैसा डिसीजन है वो। एट अ टाइम्स मैं कुछ डिसीजन ले लेती हूँ, लेकिन जहां थोड़ा बड़ा डिसीजन है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, मैं मम्मी पापा से कंसल्ट करके ही जो है कोई भी डिसीजन, मम्मी पापा मना नहीं करते हैं, बट दिस इज माय अपब्रिंगिंग कि मैं हर चीजें जो है मम्मी पापा से जो है डिस्कस करके कंसल्ट करके ही करती हूँ। मम्मी पापा किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। एम आई राइट? यस। तो देखिए, लेकिन फिर भी एक मन में एक अंदर से है ना कि मैं जल्द से जल्द जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लाना है, मुझे मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना है, राइट? तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आई कैन टेक माई फाइनेंशियल डिसीजन ऑन माई ओन। आई वॉन्ट टू बिकम financially independent so that you can take decisions related to money on your own. So you want to become financially independent. How many of you want to become financially independent as early as possible? मम्मी पापा ने हमारा बहुत कुछ किए, now it's my turn
I want to become financially independent as early as possible. How many of you want to become financially independent as early as possible? Many have, 6 people have raised their hand. Radhika is saying, yes, sir, I want to. Devashri is saying, yes. Yes, 10 participants have said, yes, we want to become financially independent as early as possible. आप में से कोई भी ऐसा, देखिए कैसा है ना, हमने इतने साल पढ़ाई की है ना, तो अभी टीचिंग आने लग गई है, अब जल्दी से जल्दी कमाना स्टार्ट करना है, ठीक है? सो वी वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. हम इतना वेट नहीं कर सकते कि अगले और 4-5 साल मुझे लग जाए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए. वी वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो देखो, आप सभी ने जो है मुझे एक अपनी अंदर से जो है, जो मन की जो इच्छा है, मन की बात, वो बताइए कि आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. लेकिन कभी आपने सोचा है ये कैसे होगा? हाउ दिस इज पॉसिबल? हाउ दिस इज पॉसिबल? सो उस पे हम बात करने वाले हैं. लेट अस जस्ट चेक ये आप कैसे, अपना जो अपने टारगेट है, आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो आप कैसे अचीव करेंगे. वी वांट टू डिस्कस ऑन दिस थिंग. So first we will need to check our state of readiness. You have shown your intention to reach that destination so that you can take your financial decisions on your own. But how ready you are to achieve that target? तो say supposingly हम सभी की कुछ जो है ड्रीम कंपनीज होती है. We all want to get into a job and we have certain perceptions in our mind कि I want to get into job into this company. Let me just mute all once because I am witnessing some kind of a disturbances. Yeah, I muted all again. So supposingly आपकी कोई भी ड्रीम कंपनी है, से HDFC है, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व है, या कोई IT कंपनी है, इन्फोसिस है, TCS है, जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज है. तो से सपोजिंगली ये ड्रीम कंपनी जो है नेक्स्ट मंथ जो है अक्टूबर में आपके कॉलेज में जो है कैंपस इंटरव्यू के लिए आती है. मैम ने बहुत एफर्ट्स लिए और इस तरह सभी कंपनीज को जो है आपके कॉलेज में बुलाया एंड देयर वुड बी अ कैंपस इंटरव्यू इन योर कॉलेज, राइट? लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, साल भर से कोई इंटरव्यू जो है कैंपस हुआ नहीं है, तो अभी ऑलमोस्ट दो बैचेस जो है और बहुत सारे बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे. सो आपको ये भी पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है? सो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट यू वुड बी गेटिंग सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब? हाउ कॉन्फिडेंट यू आर? कितने कॉन्फिडेंट? आप कॉन्फिडेंट है क्या कि आपका सिलेक्शन होना पक्का ही है? यस और नो? आर यू वेरी, you are very much confident? Yes, Fareen is saying yes, I am very much confident I would get recruited, right? Devashri is also saying. लेकिन फिर भी जो है आपको ऐसा लगता है ना कि देखिए मैं तो अपना बेस्ट पुट अप करूंगी, लेकिन फिर भी there is a element of subjectivity. might be, might may not be, competition इतना ज्यादा है, 200 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उसमें से हार्डली जो है वे लोग जो है 25 to 30 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे. तो there is a element of subjectivity कि might be, might not be. मैं तो बेस्ट ट्राई करूंगी, है ना? सो एक मन में डाउट आता है क्या आपके थोड़ा सा कि शायद यस, शायद जॉब मिले, शायद नहीं मिले, क्या पता क्या सिचुएशन होती है, उस 5 मिनट में मैं अपने आप को प्रूव कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ. देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी. एम आई राइट? ये जो डाउट आता है हमारे मन में, उसका रीजन क्या है? What is the reason for this kind of a doubt which is coming to your mind? Could you just identify ये जो आपके मन में जो डाउट आया कि शायद मुझे सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, इसका रीजन क्या है? Could you identify that any reason? Anyone? Yes sir, confidence. Very good friend. Confidence level देखो कैसा है ना, क्योंकि हमने इससे पहले कभी ज्यादा इंटरव्यूज दिए नहीं है, एक्सपोजर नहीं है इन चीजों का, तो हम थोड़ा सा जो है कम कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें डर लगा रहता है. यस, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है ना सर? यस फ्रेंड, एक्सपीरियंस भी. तो मैं अब एक एक चीज जो है आप लोगों ने जो यहाँ पे चैट पे लिखी है ना, मैं उस पर एड्रेस करना चाहूंगा. तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल. कॉन्फिडेंस आपका लो क्यों है? क्योंकि आपको इस चीज का एक्सपोजर नहीं है, आपने कभी इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिया है, और उसके बारे में सोच के आप मन में और डर पैदा कर लेते हैं, और उस समय पे जो है क्योंकि आप लो फील करते रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, जो मन में चलते रहता है वो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. फाइन. So when you are not able to express whatever is there knowledge wise in your mind, that means you are not having that much good communication skill, not much good expressive skills.
फाइन। फर्दर मुझे जो है जिस भी इंडस्ट्री के लिए मैं जा रही हूँ उस इंडस्ट्री का मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। मुझे एकेडमिकली बहुत कुछ पता है लेकिन मुझे प्रैक्टिकलिटी नहीं पता होती है कि यहाँ पे काम कैसा होता है, ठीक है। सो मेजरली 3 चीजें प्रॉब्लम देती है। एक है थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है क्योंकि आपको उस चीजों का एक्सपोजर नहीं है। नेक्स्ट, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, दैट मींस यू आर लैकिंग समवेयर इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू डू नॉट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री यू आर विलिंग टू ज्वाइन। सो कहीं ना कहीं जो है हम कोई जो केस स्टडी बेस या सिचुएशनल क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिचुएशन क्वेश्चंस को जो है प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो है हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 थिंग्स, है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अब हमने आइडेंटिफाई तो कर दिया कि रीजन क्या है, ये 3 ही चीजें हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग द इंडस्ट्री। ये 3 चीजों पे थोड़ा सा मुझे जो है काम करना होगा, ठीक है। तो अब मैं दिखाना चाहूंगा कि आज ओवरऑल इंडस्ट्री में जो है क्या सिचुएशन है रिगार्डिंग जॉब्स। सी हायरिंग थोड़ी कम हो रही है अभी, लेकिन फिर भी हायरिंग अब जो है जैसे ही अभी जो ओवरऑल हम देख रहे हैं ना मार्केट रैली कर रहा है एंड द कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेरी वेल। नाउ अगेन द कॉर्पोरेट्स आर ऑन अ हायरिंग स्पीयर, दे वांट टू रिक्रूट न्यू पीपल एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज। तो से सपोजिंगली मैं आपकी कॉलेज में आता हूँ इस मंथ और मैं representing Bajaj Finserv. Bajaj Finserv is one of the biggest company in financial domain with more than 25,000 employees. So मैं आपके कॉलेज में आता हूँ एंड आई से कि हमें जो है 100 गर्ल्स को जो है हायर करना है. We have got ample openings available in Pune, Mumbai and across the locations and even in your own hometown as well. तो मैं 100 बच्चों को रिक्रूट करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं 100 बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो उसमें से हार्डली जो है 20 to 25 स्टूडेंट्स को ही मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा. पॉइंट ये है आप में वो स्किल सेट नहीं होता है जो मैं ढूंढ रहा हूं. देखिए आज कोई भी रिक्रूटर जो है ना इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स चाहता है. वो ऐसा नहीं चाहता है कि मैं आप पे जो है 6 महीने 7 महीने आपको सिखाने में टाइम स्पेंड करूं और उसके बाद जो है साल भर बाद आप मेरे लिए प्रोडक्टिव हो. आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोडक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, राइट. सो रिक्रूटर को क्या चाहिए, पहले महीने से दूसरे महीने से आप हमारे लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल. से सपोजिंगली मैं से कोई बैंक को रिप्रेजेंट करते आपके कॉलेज में आता हूं, मैं एक्सिस बैंक को रिप्रेजेंट करते हुए आता हूं और मैं आप लोगों को आज हायर करना चाहता हूं फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो आपको क्या करना है, जो भी आपके बड़े बड़े बैंक के जो कस्टमर्स है, एचएनआईज जो है, एनआरआईज जो है, उनको सभी बैंकिंग प्रोडक्ट्स में जो है हेल्प करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हेल्प करना है, उनका पोर्टफोलियो बनाना है आपको और उनको समय समय पे जो भी बैंकिंग की सर्विसेज रिक्वायर्ड है उनमें उसने हेल्प करना है. फाइन. नाउ जस्ट टेल मी, अगर मैं फर्स्ट मंथ से आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक एनआरआई क्लाइंट को हैंडल कर लो, आर यू केपेबल एंड इक्विप्ड इनफ टू हैंडल दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस? नो सर. नहीं, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है बैंकिंग का. समझ में आया ना. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. वी अंडरस्टैंड, न्यूज़पेपर्स में भी टीवी में भी हमेशा देखते रहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है. ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, नो डाउटेडली. बट रिसेंटली जो है आउटलुक मैगजीन का नाम सुने ना आपने, टाइम्स ग्रुप की है. तो उन्होंने जो है एक सर्वे किया था सोसाइटी में. उस सर्वे में जो फाइंडिंग आई थी, द फाइंडिंग वाज दैट 60% of Indian graduates and postgraduates are non-employable. What did I say? Non-employable. See, non-employment is a problem, but non-employability is a much bigger problem. The recruiters want to hire you guys, but you are not possessing the skill set which I am looking out for. So it is a big problem, employability. So Bajaj ने identify किया कि employability सही में एक बहुत बड़ा problem है सोसाइटी में, जिसे हमें जो है एड्रेस करना चाहिए. So that's why they have come up with this program, that is CPBFI under CSR. What is CSR? Corporate Social Responsibility. सभी कॉर्पोरेट्स की जो है सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी होती है. उन्हें सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो है
अपने प्रॉफिट में से जो है कुछ खर्च करके जो है सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए कुछ करना होता है. So Bajaj has came up with this program purely under CSR, corporate social responsibility. Fine. तो चलो अब मैं आगे बताता हूँ क्या है इस प्रोग्राम में. See, आप में से किसी ने कभी आज तक कोई इंटरव्यू दिया है? Any one of you would have appeared for any kind of an interview? Yes, sir. No, Yeah. sir. Yes, sir. Yes. कुछ बच्चों ने जो इंटरव्यू दिए हैं, वेरी गुड, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट थिंग. अच्छा चलो, कुछ ने नहीं भी दिए, तो आपने कभी जो न्यूज़पेपर में जो एड आती है, वैकेंसी की जो एड आती है, अपॉइंटमेंट्स की जो एड आती है, वो आपने कभी देखी है? हाँ सर. Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. bang on, really appreciable. वो हमेशा देखना, उससे आपको Yes, समझ sir. में आता है कि आप कहाँ हैं आज. हाँ, तो देखो, कभी भी जब ये अपॉइंटमेंट्स के ऐड आते हैं ना, उसमें क्या पूछा रहता है कि will we require fresh graduates who have completed their graduation, I would say graduates who are hardworking, fine, full of energy, energetic, and who have inclination to learn new things. क्या चार चीजें मैंने कहा? Graduate who are hardworking, energetic, and an inclination, that means willingness to learn new things. तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करती है, चैताली देखती है, वैशाली देखती है, वैष्णवी देखती है कि हाँ, मैं तो ग्रेजुएशन मेरा अच्छे मार्क्स से हो ही गया है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मम्मी पापा ने हमेशा मुझे हार्ड वर्किंग का इंपॉर्टेंस समझाया है, और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कहते हैं हमेशा कि तू कितनी एनर्जेटिक है, कभी भी जो है लो फील नहीं करती है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी. सो एनर्जेटिक हूँ और मुझे नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है. तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने तो चारों क्राइटेरियाज पे टिक टिक किए हैं, तो मुझे जॉब मिलना फॉर श्योर है. एंड बिलीविंग ऑन दीज थिंग्स यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, और जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां सिचुएशन चेंज हो जाती है. ठीक है, तो आप एम्फसाइज कर रहे हैं ये ऊपर की 4 चीजों पे, लेकिन रिक्रूटर आप में क्या चीजें देखता है? ये बॉटम की 4 चीजें. और मुझे बताइए, इन बॉटम की 4 चीजों में आप अच्छा फेयर करते हैं क्या? डू यू फेयर वेल इन दिस बॉटम 4 थिंग्स? No, sir. नहीं. तो पॉइंट ये है, इसीलिए हमारा जो है सिलेक्शन नहीं होता है, और हमें हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क रह जाता है माइंड में, क्या गलती हुई, समझ में ही नहीं आया क्या गलती हुई. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने नहीं है, और आपको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है. सो बेसिकली ये 3 चीजों पे हमें काम करना जरूरी है. So let us just identify how could we work on this one. Path to success. Fine. What is this path to success? Just try to understand. Say supposing जैसे हमें कभी भी जो है path to success यानी ये आपकी जो है करियर जर्नी है, तो आप आज एज अ स्टूडेंट हैं और आप अगले 5 साल में जो है अपने आप को एक सक्सेसफुल करियर में देखना चाहते हैं. तो एक सिंपल तरीका है, आप इस तरह से आइडेंटिफाई करिए, जैसे हम कभी भी जर्नी करते हैं, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है. से सपोजिंगली अकोला से आपको नागपुर आना है. फाइन. सो सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन क्या करेंगे कि इज इट द राइट डेस्टिनेशन? क्या मैं सही जगह जा रही हूं? क्या ये यहीं से बैठे बैठे काम हो सकता है क्या, कि मुझे फिजिकली ट्रैवल करना जरूरी है? यस. फिर आपको ऐसा लगता है हाँ, मेरे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वहां जाना जरूरी है, इट इज द राइट डेस्टिनेशन, देन यू वुड डिसाइड आई नीड टू गो देयर. तो कहीं पे भी पहले आप डिसाइड करिए, whichever destination I am looking for, is it the right destination which I should go? Fine. So accordingly, say supposingly आपने decide कर लिया, हाँ, this is the right destination. Then the next thing which you decide is the road to take. कौन से रोड से जाना है? एक जो है एक आपका जो है अमरावती होते हुए रोड आता है, एक दरियापुर होते हुए रोड आता है, एक मोर्शी होते हुए रोड आता है, एक वर्धा होते हुए आ जाता है ना, एक आकोट होते हुए आता है नागपुर. कौन सा रास्ता लेना चाहिए आपने? तो आप देखेंगे मल्टीपल रास्ते हैं. तो एक रास्ता है जो बहुत जो है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक जाम होता है, कंजेशन रहता है कई बार जो है, और एक रोड है जो थोड़ा सा जो है हार्डली जो है 10 किलोमीटर ज्यादा है, बट इट इज अ वेरी वेरी फ्री रोड एंड यू वुड ओवरऑल एंजॉय द राइड इन दैट वन. स्मूथ रोड है वो. तो विच रोड वुड यू प्रेफर?
a smooth road. Fine, very good, Farid. Fine. So identify the road which you need to take, and the last thing which you would identify is the vehicle. कौन सी गाड़ी से मुझे जाना है, ठीक है? तो आप कार से भी जा सकते हैं, अपनी खुद की बाइक से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं. तो से सपोजिंगली आप कार से जाना चाहते हैं, तो कैसी कार चूज करना चाहेंगे आप? कैसी कार चूज करना चाहेंगे जो आपको ज्यादा माइलेज देती हो, है ना, और जिसमें शॉक अब्जॉर्बर जो बहुत अच्छे हो, जिसका एसी बहुत अच्छा काम करता है, जो आपको कंफर्टेबली जो है वहां तक पहुंचा दे इन इकोनॉमिकल मैनर. इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, ये दोनों चीजें आप देखेंगे, कंफर्टेबली, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली आपको वहां पहुंचाते. तो दैट काइंड ऑफ अ व्हीकल यू वुड चूज. तो देखिए, ये कहीं पे भी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में आपने जैसे इतनी सिंपल एनालॉजी वर्कआउट करी, उसी तरह से अगर आपको जो है, मैं कहता हूं, अगर ये आपकी करियर का जो है मूवमेंट है, तो आपको इसी तरह से जो है तीन चीज देखना है. सबसे पहले इंडस्ट्री, दैट इज योर डेस्टिनेशन. तो डिसाइड ऑन द राइट इंडस्ट्री which provides you a stable, growing and respectable job. Banking as an industry provides you stable, growing and respectable job. The job profiles are profitable. It provides you multiple career choices. See, कई बार क्या होता है बच्चों, अभी आप लोग फ्रेश रहते हैं, आपको एक इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं और फिर सडनली आप आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे ये काम नहीं जम रहा है. तो फिर अगेन आप इंडस्ट्री चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं. रादर बैंकिंग एज ए इंडस्ट्री ऐसा है जिसमें अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल नहीं भी जमा, तो आप वर्टिकल मूवमेंट यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकते हैं. आप उसी इंडस्ट्री में पैरेलली किसी दूसरे रोल में जा सकते हैं. मल्टीपल रोल्स अवेलेबल है, मल्टीपल करियर चॉइसेस अवेलेबल है इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन. फर्दर एक और इंपॉर्टेंट चीज, चॉइस ऑफ लोकेशंस. जैसे आज आप लोग अकोला में हैं, से आपने जो है अकोला में जो है बैंकिंग में या फाइनेंशियल डोमेन में जो है साल भर काम कर लिया, देन फिर मम्मी पापा आपकी शादी के बारे में सोचते हैं, ठीक है. आईटी डोमेन में अगर हम जाते हैं ना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मेट्रोज में और बड़ी सिटीज में अवेलेबल है. अगर आप किसी दूसरी सिटी में जो है अगर रिलोकेट होते हैं, तो माइट भी वहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिले. लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल डोमेन में आप किसी भी सिटी में अल्टीमेटली लैंड अप होते हैं, तो वहां आपको उसी तरह के जॉब प्रोफाइल हमेशा अवेलेबल रहेंगे. So it provides you the choice of locations, whereas in any other industry you do not have those choice of locations. Fine. And it provides you immense growth opportunities. So first choose the right industry. The next thing is the career path. रास्ता कैसा ढूंढना है. तो ये राइट डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया आपने. अब रोड पे आ जाते हैं. रोड यानी क्या हो गया आपका करियर पाथ. तो देखो, एक जॉब ऐसा रहता है जो 9 to 6 का जॉब है, जिसमें कुछ जो है MIS रिपोर्ट्स वगैरह बनाना है, एक्सेल वगैरह बनाना है. उसमें वही लिमिटेड जो है आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलेंगी और ग्रोथ के भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है. रादर एक जॉब है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, जिसमें मेहनत करना है, लेकिन उस चैलेंज के साथ में जो है रिवॉर्ड्स भी एसोसिएटेड है. और जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, एज अ मेरिट आपको रिवॉर्ड किया जाएगा और जल्दी जल्दी आपकी हायरार्की में जो है ग्रोथ फास्ट होगी. दैट मीन्स you would grow from very immediately to managerial, senior managerial position. जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बैंकिंग इंडस्ट्री में चंदा कोचर मैम का नाम सुना है आपने? She was the ex CEO of ICICI Bank. So Chanda Kochar ma'am, like you guys only, started in ICICI Bank as a fresh officer, and gradually she graduated in the overall hierarchy of the company, and ultimately in a span of hardly 15 to 20 years became the CEO of the bank. So that means अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है, तो आपको उतनी ग्रोथ और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. तो मुझे बताइए आपको कैसा रोड चाहिए. एक जो है 9 to 5 वाला बगैर टेंशन का जॉब चाहिए, या चैलेंजिंग जॉब आप एस्पायर करना चाहते हैं? चैलेंजिंग, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर ready to take up the challenges. Only thing you want is that my whatever efforts I am putting up, that should be rewarded in a proper manner. If they are rewarded properly, I am willing to take any kind of a challenge. That's the spirit, I would say. And so choose the right job. And the last thing is the car. ठीक है. कार यानी क्या हो जाता है, आपकी कैपेबिलिटीज. तो कार में आपको क्या रिक्वायर्ड था? बेटर माइलेज, कंफर्ट, है ना, और better fuel efficiency, so that comfortably and economically you reach the destination you are looking out for. Okay, so your destination is to become a
senior manager in a particular job profile in hardly 5 years. So now we are talking of the vehicle, and vehicle means vehicle यानी कौन हो गया? आप तो आप में बेटर माइलेज के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंफर्ट के लिए क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए, स्किल सेट्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, और रेजिलियंस। रेजिलियंस मींस लगे रहने की क्षमता। अप डाउन आते हैं लाइफ में, लेकिन हार नहीं मानना है, लगे रहना है। ठीक है, तो मुझे बताओ एज अ व्हीकल जो है आप में कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं है? कुछ जो है एज अ मैकेनिक आप में रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है क्या? आर यू हैविंग दीज थिंग्स, better mileage, comfort, and those things in you as a car? Yes, you require repair works. So just tell me, are you a good mechanic of yourself? क्या आप अपने आप का जो है ओवरहॉलिंग करना चाहते हैं क्या एज अ मैकेनिक? वैसे भी लॉकडाउन में पड़े पड़े जो है बहुत जंग लग गई है आप में, है ना? तो अब इसे Yes, sir. ओवरहॉलिंग मांगता है। Yes, sir. तो एज अ मैकेनिक हमें इसको पूरे पुर्जे पुर्जे निकाल के जो है CPBFI में जो है इसकी पूरी ओवरहॉलिंग करना होगा, so that with this vehicle you can travel at any place which you would be liking for, which you have always aspired for. Fine, so that is the thing we want to work on. Are we ready for that thing? Yes. Yes, sir. Chalo, great, Yes, great. sir. So CPBFI as a first step. So see this one, CPBFI where we have came up, अब ये जो लास्ट ईयर हमने जो किए थे ना, उससे हमने और भी कुछ चीजें नई ऐड करी है इसमें CPBFI में। दिस इज CPBFI 3.0। अर्लियर जो हमने किए थे 2.0 किए थे। जैसे आपके जो है कोई भी कंप्रेसर का या जो है ये प्रोसेसर का जो है, या जो है आपके मोबाइल के नए नए वर्जन आते हैं ना, तो वैसे ही जो है CPBFI का 3.0 वर्जन है। इसमें मेजरली 4 चीजें हैं। फर्स्ट है, सबसे मेजर पार्ट है कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस स्किल्स। सी जैसे ही आप लर्नर से अर्नर बनते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां पे कम्युनिकेशन एंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। वहां इसी तरह से जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे बात नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको एक अलग तरह से बात करना पड़ता है अपने बॉसेस से, अपने पीयर्स से। तो वो कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो इन डिटेल वुड बी कवर्ड इन दिस थिंग। सो क्या क्या कवर किया जाएगा इसमें? लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिस्कशन स्किल्स, द आर्ट ऑफ परसुएशन, द आर्ट ऑफ फीडबैक, द आर्ट ऑफ आई वुड से ईमेल स्किल्स, ईमेल राइटिंग। जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में जो है मेजर कम्युनिकेशंस होते हैं थ्रू ईमेल। तो कई बार हम जो है ना, जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं, अगर कुछ गलत भी टाइप हो गया तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। मुझे बताइए, अगर आपने ईमेल किसी को कर दिया और उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है या सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ गलत हो गया है, एक बार आपने सेंड कर दिया तो उसे वापस बुला सकते हैं क्या? नहीं। So you No, have to sir. be double sure whenever you are writing your email that it is totally correct in every regard. Fine. So वो email skills cover किए जाएंगे। फिर इसमें आपका बहुत सारी एक्टिविटीज, गेम प्लेज, पार्टिसिपेशंस किया जाएगा, एक्सटेम्पर लेवल पे होगा, आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे, रोल प्लेज होंगे, केस स्टडीज दी जाएंगी। सो एवरी अदर डे यू हैव टू पार्टिसिपेट। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है, जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितनी कोशिश करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। मैं जस्ट अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मैं आप लोगों के जैसे ही ग्रेजुएशन के लेवल पे था, तो मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाता था। मैं अगर मुझे क्लास में सामने आके किसी का प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता था, तो मैं लिटरली, मेरे हाथ कांपते थे, मेरे पैर कांपते थे, और मैं स्टैमर करता था, अकलाता था। अभी मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, या मैं सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं? सी, आई एम टॉकिंग ऑफ कम्युनिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इंग्लिश. It is a I would say conception that communication means speaking in English. How fluently you are able to express whatever is coming to your mind, that is communication skill, I would say. So do I am having some any kind of a limitation right now? No. ये No, कैसे sir. हुआ? No. कैसे हुआ? No, sir. Just by practice. Just by practice. No, sir. तो इसीलिए जो है ये कम्युनिकेशन स्किल में जो है इंडस्ट्री ट्रेनर्स जो रहते हैं, आपको एग्जॉस्टिव लेवल पे ड्रिल करते हैं, और आपको इतना एक्सपोजर दिलाते हैं कि हार्डली इन अ स्पैन ऑफ 4-5 क्लासेस ओनली you would be itching to come forward and give the presentations. So that kind of a difference we have seen in the students. Okay, next we would cover the practical aspects of 2 industries. First is the banking industry, the overview of banking, retail banking, कि बैंकिंग में जो है
क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, कितने तरह के लोन होते हैं, कोई भी लोन लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, डिजिटल बैंकिंग क्या होता है। तो ये सभी चीजें जो है बैंकिंग के जो है अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल मैनर would be covered through various case studies and practical assignments also, and it would be delivered by an industry professional yani who has been already a associate vice president with HDFC Bank and now into corporate trainings. That kind of a person would be delivering this program for you. So this is banking, and similar ways the practical things of insurance. What is life insurance, what is general insurance, life insurance में क्या क्या products होते हैं, ठीक है। कभी आपको इंश्योरेंस में कभी कोई क्लेम पुटअप करना है तो क्लेम की प्रोसेस क्या होती है, ये अभी जो नई चीजें आ गई है कवर फॉक्स और ये पॉलिसी बाजार वगैरह, ये सब क्या है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है। सो फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आल्सो दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज इज द नीड ऑफ आवर एज ऑफ टुडे। आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करें या नहीं करें, लेकिन बेसिक बैंकिंग और इंश्योरेंस का नॉलेज हर इंसान के लिए आज जरूरी है या नहीं, ये मुझे बताइए। If you understand sir. these things, you would be Yes, able to sir. take your financial Yes, sir. decisions on your own. अपने पैसे Yes, को sir. भी कैसे इन्वेस्ट करना है आप समझ सकेंगे, है ना। So these three things, so 36 hours communication skills के and 24 hours insurance and banking के, और इसके अलावा इस साल हमने इसमें एक और चीज ऐड करी है, that is all about managing self. You all guys are future managers of various organizations. तो पहले मैनेजर, दूसरों को मैनेज करने के पहले आपको अपने आप को मैनेज करना सीखना है, तभी आप सक्सेसफुल मैनेजर बनेंगे। फाइन। सो मैनेजिंग सेल्फ क्या है, इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल पार्ट, इट इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये जो मुंबई की जो साइकोलॉजिस्ट की जो टीम है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की जो टीम है, वो टीम जो है ये आपका मैनेजिंग सेल्फ का जो है वर्कशॉप डिलीवर करेंगे। इसमें क्या होगा कि कई बार जो है आपने ऑब्जर्व किया होगा, छोटी मोटी चीजों का भी आपको कई बार बहुत प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, कभी कभार आप बहुत डाउन फील करते हैं, अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, ठीक है। कई बार प्रेशर्स को, एग्जाम के प्रेशर्स को नहीं झेल पाते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। और आगे चल के जॉब से रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रेशर आता है तो उन प्रेशर्स को आपने कैसे कोप अप करना और वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना, उसके ऊपर ये रहेगा ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। आप अपने इमोशंस को कैसे काबू में रख सकते हैं। सो इट इज अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। नॉर्मली ये जो बड़े मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो पर्संस होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन Bajaj has came up with this program specially only for the CPBFI students. So this is the entire things which we would cover. So it's a unique content which covers attitudes and skills, practical knowledge, engaging sessions होंगे, कोई lecture नहीं होगा। जो भी ट्रेनर्स हैं इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस पर्संस हैं। अब ये पूरा जो प्रोग्राम, ये जो इतना होने के बाद में, ये 42 डेज का प्रोग्राम होने के बाद में फिर आपका एक HR वर्कशॉप लिया जाएगा। HR वर्कशॉप में क्या होगा, बजाज की एक्चुअल रिक्रूटमेंट टीम जो है आपका इंटरव्यू लेगी, और उस इंटरव्यू में जो है आपको हर लेवल पे ड्रिल किया जाएगा, और वो ड्रिलिंग के बाद में वो इंटरव्यूअर आपको वन ऑन वन एक फीडबैक देंगे कि जैसे नेहा आप ये सब चीजों में बहुत अच्छे थे, अगर ये चीज पे अगर आपने थोड़ा सा और काम कर लिया ना, वी वुड लव टू हैव यू इन आवर कंपनी। फाइन। सो अब नेहा को समझ में आ गया मुझे किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, किस पे मुझे मेहनत करना है, और उससे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब मैं बजाज का इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ तो मैं किसी भी कॉर्पोरेट का इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पे रहता है। और क्या होता है, नॉर्मली हम इससे पहले क्या होता है, बहुत से इंटरव्यूज देते हैं, कोई हमें फीडबैक नहीं देता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और हम अगेन एंड अगेन वही गलतियां दोहराते जाते हैं। इज इट द केस? सो यहाँ अब आपको फीडबैक मिल जाता है, तो एक जेन्युइन फीडबैक है, आप उस पर काम करते हैं और अपनी गलतियों को सुधार के नेक्स्ट टाइम इंश्योर करते हैं कि आप वो गलतियां ना करें। तो ये HR वर्कशॉप होगा, तो सभी बच्चों को HR वर्कशॉप अपीयर करना है। तो आपको ये ओवरऑल जो है 46 डेज की ये ट्रेनिंग्स प्लस ये HR वर्कशॉप, यानी 46 डेज में आपको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, दैट इज द CPBFI सर्टिफिकेशन एंड द HR वर्कशॉप सर्टिफिकेशन। तो जो बच्चे ये CPBFI सर्टिफाइड है प्लस HR का जो वर्कशॉप है उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो उन सभी बच्चों को जो है उनका डेटा जो है बजाज अलग से मेंटेन करेगा। आपकी लोकेशन में, आपकी सिटी में, आपके आसपास में कोई भी जॉब ओपनिंग आती है तो वो इमीडिएट आपको फॉरवर्ड करते हैं, आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करिए और क्रैक कर लीजिए वो इंटरव्यू।
So that kind of an assistance is given by Bajaj for all those people who are CPBFI certified and who have appeared for the HR workshop. Fine. So this is the unique content basically. So ये प्रोग्राम हम जो है ऑलरेडी जो है 7 स्टेट्स में 50 सिटीज में कर रहे हैं और 95% बच्चों का कहना है कि दिस प्रोग्राम हैज गिवन अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर एंटायर करियर एंड दे आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस प्रोग्राम टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू देम. तो ये जो कहानी है, मैं आपके ही जो सीनियर्स है, यहाँ पे कुछ सीनियर्स आपके अवेलेबल है. आंचल है वहां पे, यहाँ पे और कौन है? आंचल, माधवी है, Sir, Madhuri is there, Chaitali is there. चैताली इज देयर. तो वन बाय वन मैं आप तीनों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी फील किया है इस प्रोग्राम में थ्रू आउट द इंटरेक्शन ऑफ those 30 days when you interacted with the faculties and the HR workshop and all those things. So what is your feedback or takeaway from this program? Please share with the students so that these guys could also experience those things in their overall journey. So over to you, Achal. Thank you, sir. Sir, am I audible properly? Okay, sir. Hello, Siddhant sir, Alex sir. I'm happy to see you after a long time. Hello, dear friends. Good morning, all of you. Hope you all are doing well. So, guys, today I'm here to share my experience with this course. First of all, let me introduce myself. My name is Achal Agrawal, student of RDG College for Women, Akola, and an alumni of CPDFI training program. We did this course in the month of February 2021. Actually, that was our first batch of our college. And as Siddhant sir already told in detail about the course, like it has many sections, including the subjects like banking operations, business communication, and insurance management. Apart from that, it also includes a mock interview and HR workshop at the end of the session, at the end of the course, which provides us practical experience of job interviews and prepared us for future. There were also some activities in training sections like role plays and group presentations, which was really very interesting. I learned a lot of things from that and enjoyed as well. Actually, that was my favorite part, and I'm still missing this. To talk about my trainers, I have no enough words because they really quite awesome. Alex sir, Siddhant sir, Ajit sir, Sucheta ma'am, they are highly experienced professionals in their respective fields. I must say, they are really a great mentor, and I feel lucky to connect with them. After doing this course, I felt a lots of changes in myself, like this course not only broadened my knowledge in regarding the FSI sector, but also boosted my confidence, improved my communication skill, improved body language, and I learned how to talk, how to deal, how to communicate, how to present yourself, and many more things that may not be conclude right now. And this also helped me to find best in me. It was really one of the great life-changing experience for me. I must say I'm here just because of CPBFI. And I'm really grateful to Bajaj Finserv and all CPBFI team and also my college for giving such a great and wonderful opportunity. At last, I just want to tell you guys, this is a golden opportunity for you. So don't let it go, just grab it. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. Have a great day. Thank you, Achal. It was really, really heartwarming. Itna acha interaction. The confidently you spoke in English and covered each and every aspect. That's really, really appreciable. We hats off to you. Hats off to you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It's my pleasure. Thank you. Yeah. So you could have seen the overall confidence in Achal's overall interaction. Now I would like to call up Madhuri. Please have a word with the students. Yes, sir. Yes, Madhuri. Yes, sir. Hello, everyone. Once again, this is Madhuri Chandwani here, and I am in BBA third year from RDG College, Akola. In the beginning, I had too many expectations from this course, and this course has fulfilled my every expectations. So I am here in front of you to share my experience with you about this course.
The CPBFI program is a very unique course, and actually it is a practical oriented course which has domain knowledge and soft skills, which includes the subjects like banking operations, insurance management, and advanced business communication. CPBFI course has not only improved my industry knowledge, but also has boosted my confidence as well as improved my communication skills. CPBFI enhances skills with experimental learning. Different interesting activities were taken by the trainers during the sessions, including activities like speech writing, presentations, role plays, group discussion, and many more activities were taken. As a student coordinator, I have learned a lot. The most important thing I have learned how to deal with the people and how to handle them. I have inculcated many qualities, including teamwork and leadership, within me, and experienced how to work as a group. Had a great experience of HR workshop and mock interview for my the future, where the recruit provided feedback to us for our positive points and for our negative points. Indeed, it was amazing 1 month journey with CPBFI, which was filled with lot of experiences. And at last, post-assessment test was taken to know how what we have learned in past few days. The journey of corporate training was really amazing and interesting. The journey of corporate training have been ended with the certification. Lastly, I would like to thanks the coordinator Rupa Gupta ma'am, my trainers Alex sir, Ajit sir, Suchita ma'am, and whole CPBFI team and Bajaj Finserv and the resource person Siddhant sir. And one more thing I want to say, girls, this is a wonderful opportunity, so don't miss it and take active participation in it. Thank you. Thank you, Madhuri. That's really, really wonderful. And one more girl is here with us to give her overall feedback. It's Chaitali here, I think so. Chaitali, are you there? Yes, Chaitali. Yes, sir. So over to you, Chaitali. Hello, sir. Yeah, thank you, sir. Hi, sir. How are you? Yes, very good, Chaitali. You can just give your Hello. overall experience regarding this course to the students so that they firsthand know what all Hello. things you have witnessed in this course. I'm audible. Yes, Chaitali, you are audible. Yeah, sir. How are you, sir? Okay. Yes. Hello, everyone. I'm Chaitali Khanderai from Odyssey College, Akola. Hope you and your family are safe and in good health. Our college always give us a various types of opportunity, and I think we always make it an a golden chance. Our college partnered with an Bajaj Finserv Limited, one of the top most financial company in the country. It conducts a certificate program in banking, finance, and insurance. It's an employability course. It's a really different from other courses. It gives the real skills that corporate requires in the today's youth. This course is very useful. The modules are practical and designed in order to train students to meet today's market requirement. Along with an excellent teacher staff, Siddharth sir, Alex sir, Ajit sir, Suchita ma'am, they are really doing great for their students. And the HR workshop was the highlighted of this course. This is very useful course, and this is practical oriented course which I really enjoy. After successful completions of this course, they provide us a various types of job opportunities and an internship program. It is very helpful as a good career option. I'm a very happy to say that I'm an intern of Bajaj Alliance General Insurance Company. From that, I got a various practical knowledge of today's corporate world. As Achal and Madhuri says, don't miss this opportunity. Please grab it. Thank you to whole CPBFI team and thank you to our college teachers. Thank you, sir.
ओके, थैंक यू चैताली, दैट वाज रियली हार्टनिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड रियली वी गाइस मिस यू, एंड द काइंड ऑफ इनपुट्स यू हैव गिवन, दैट्स रियली, यानी ऐसा लग रहा है कि जो भी एफर्ट्स आलेख एंड टीम सभी ने किए हैं वो आप लोगों को वर्थवाइल रहे हैं, Yeah, sir. एंड दैट इज द बिगेस्ट आई वुड से take away for us for as a trainer, that you have taken some good inputs from these programs. So thank you for sharing your feedback. So coming to this thing, friends, just मैं यहाँ पे इसकी process आपको बता देता हूँ. So what is the process for enrolling for this thing? First, you need to enroll for this program. Then there would be a pre-CPBFI quiz. यानी just आपको check करने के लिए where do you stand today. It won't be evaluative. It will just to understand कि आज आपका knowledge level कितना है. उसके बाद हम जो है program launch करेंगे. Then the entire 46 days of training would be conducted. 46 days, not 30 days. It is 46 days because it is online right now. And then the HR workshop would be conducted. Then out of this entire 46 days of training, there would be an online assessment, post assessment, in which you need to score bare minimum 50% marks. And I assure you, if at all you sincerely attend the training, you can easily score that 50% mark in that one. And once this is done, you would get both these certifications, the CPBFI certification, which is a joint certification between RDG College and Bajaj Finserv, and the HR workshop certification from Bajaj Finserv. So 45 days, 2 important certifications. So it's a great thing, and it's an opportunity which you guys should not miss out. Okay. So one last thing I would just conclude. I have taken almost an hour of yours. देखो अभी जो है ना बहुत सारे जो है ऑफर्स आ रहे हैं आपके Amazon and Flipkart में. So I give you 2 offers and identify which offer would you select. So there's 100 rupee Amazon voucher which is available free of cost, and there is one more 250 rupee Amazon voucher which is available for rupees 25. So which option would you like to take? Option number 1 or option number 2? Which option would you like to take? Yes, friends? Yes, sir. Which option? Devashri is saying option number 2. Sir, Apurva. option number 2. Option number 2. Option number 2. Very good. Very good. Everyone is saying option number 2. Can anyone tell me why this option number 2? Can anyone unmute and speak it up? Why do you have selected option number 2? Pay more, get more. Yes. What value you are getting is more important. See, in initial first one, you are getting a value of only 100 rupees, but here you are getting an additional value of 225 rupees. So that's why you have opted for option number 2. So can anyone relate? ये question मैंने आपसे क्यों पूछा है? Why I asked this question to you? There's a simple thing that this program is under CSR. So it could be offered to you free of cost, but you need to just see what value you are getting. I will just tell you, ये जो है कि जिस तरह से प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाता है प्रोग्राम, इसमें जो है बजाज को बहुत स्पेंड होता है, खर्चा बहुत आता है. तो if at all we are making a batch of roughly around say 50 students, so per student जो बजाज को जो expenses आते हैं, that is roughly around 30,000 rupees per student. Fine. So that is the amount which Bajaj is spending you as an individual student. So for your commitment level, you also need to pay some amount for this program, and for that amount I would just call up Rupa ma'am to just give you a brief that what is the fees for you have to pay for this program, and they have some benefits also available for you guys. So ma'am, are you there? Yes, sir. Thank you so much, sir, for your important insights on certificate program in banking, finance, and insurance. And also thank you to all 3 students, those who have given their valuable feedback on this occasion. So I now request Honorable Dr. Ambadas Ji Pandey sir, the Vice Principal and the Head Department of Commerce. He will share the other things or other information. Over to you, sir. Good morning, Siddhant sir. Siddhant sir, good morning. Yes, sir. Very, very good morning, sir. Welcome to the session, sir.
Good morning, students. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Very good morning, sir. मैं ये प्रोग्राम सुन रहा था बेटा, जैसे ये शुरू हुआ मैं ज्वाइन था। एक्चुअली सिद्धांत सर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है सिद्धांत सर के लिए। सिद्धांत सर, आप बहुत ही अच्छा उसे पढ़ाते हो। ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते ही जाना। यू आर वेरी गुड टीचर सर, सिद्धांत सर। लास्ट बैच हमारी निकल चुकी है, बहुत अच्छा हमें रिजल्ट्स उसके मिले हैं। लास्ट बैच में एक्चुअली 56 स्टूडेंट्स had joined this course, and out of that 36 have successfully completed this course. मुझे इस पर थोड़ा सा ये करना है कि भाई हम जितना भी रजिस्टर्ड होते हैं सभी इसमें सभी को सक्सेस मिलना चाहिए, बट सक्सेस इन द सेंस कि भाई बाकी लड़कियों ने शायद वो कोर्स सिंसियरली नहीं किया हो, कुछ मिस हुआ होगा उनका। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखो बेटा कि ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। सर ने आपको इसके डिटेल्स बताए हैं कि ये जो बजाज फिंसर आपके लिए कर रहा है ये एक ही है कि उनका जो CSR फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे बताने में खुशी है कि भाई बजाज फिंसर के जो क्या कहेंगे हम उनके व्यूज है एक सोसाइटी के प्रति और हमारी सोसाइटी के, हमारे भारतीय सेवा सदन के, हमारा भी एक विजन है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने सिद्धांत सर को सुना है कि भाई यू आर नाउ लर्नर टू अर्नर के लिए हमें एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हमें आना होना चाहिए, हम एक आर्थिक दृष्टि से हम सक्षम होने चाहिए, और वो जो सक्षमता है, एम्पावरमेंट है, वो केवल हमें हमारे ही कमाई से आ सकती है। तो ये बजाज फिंसर जो आपके लिए कर रहे हैं वो रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बजाज फिंसर फॉर देयर एफर्ट्स। बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं हमारे बच्चों को सेव करने के लिए। देखिए गौर से सुनो, बजाज फिंसर एक्चुअली हैज टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू shape your career, shape and safe, two words are there, SHAPE। आपका करियर सेव करने के लिए, मोल्ड करने के लिए बजाज ने ये की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और इसी से आपका करियर सेफ हो जाएगा, SAFE, राइट। तो इसके लिए मैं बजाज फिंसर पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने सुना है सिद्धांत सर से कि एक्चुअली उनको एक बच्चों को ट्रेन करने के लिए 30,000 नियर अबाउट खर्च आता है, क्योंकि आपको जो ट्रेन करने वाले रिसोर्स पर्सन्स है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रिसोर्स पर्सन्स है, एंड बजाज फिंसर हैज टू पे फॉर दैट। आपके लिए खर्च कर रहे हैं बजाज फिंसर। तो एक 30,000 का कोर्स आपको केवल रजिस्ट्रेशन करके मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन फीस है ओनली 1,000 रुपीज। और सर ने अभी बोला है कि भाई अमेजोन का एग्जांपल दिया है कि आउट ऑफ दैट माने 1,000 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। ये पूरी प्रोसेस में से जाने के बाद पूरा कोर्स आप करोगे, आपकी एग्जाम ली जाएगी, और ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, सभी जो इसमें सक्सेसफुल होते हैं उनको 1,000 में से 500 रुपया रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। माने आपको ये कोर्स कितने में पड़ रहा है? केवल 500 रुपीज में, और वो भी रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर। मुझे बताइए, 1,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के देने हैं, और आपने ये कोर्स करने के बाद आपको उसी में से 500 रुपए गिफ्ट वाउचर के रूप में, गिफ्ट के रूप में बजाज फिंसर आपको वापस कर रही है। कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करता है आज के इसमें। तो एक बार पैसा आने के बाद वापस कोई नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स ये काय के लिए है कि भाई आपको इसका इंपॉर्टेंस समझे, आप सीरियसली करें। तो इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखी है। तो मैं चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम में जितनी भी लड़कियां जुड़ी है सभी ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और
इस कोर्स के कंटेंट्स मैं बोलता बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट प्रोग्राम भी मैंने सुना सर का, मैं ज्वाइन हुआ करता था जब इनका ट्रेनिंग चालू था। तो सर मैं ये कहूंगा कि यार दिस स्टूडेंट्स आर वेरी लकी कि they got such an opportunity to just join such wonderful course। तो बच्चों, एक बहुत बड़ी कॉलेज ने और बजाज फिनसर्व ने आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपने इसका फायदा उठाना चाहिए। और वी आर लकी स्टूडेंट्स, हम बहुत खुश नसीब समझते हैं खुद को कि अकोला जैसे शहर में, हमारे अकोला के आरडीजी कॉलेज की बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए बजाज फिनसर्व ने हमारे साथ ये एमओयू किया है, टाइप किया है। देखिए बजाज फिनसर्व को कितनी चिंता है आरडीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स की, कि ये बच्चों को कहीं तो भी हम एक ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। ये ड्रीम लेकर बजाज फिनसर्व ने ये प्रोजेक्ट आपके लिए लाया है, तो आपने इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। सिद्धांत सर, मैं आपको तहे दिल से आपके धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप इतने एफर्ट्स हमारे बच्चों पर लेते हो। और मैं अभी इनका फीडबैक सुन रहा था, तो सच्ची मैं बहुत ही आई कांट एक्सप्लेन, बहुत खुश हूँ मैं कि ये इतना कॉन्फिडेंस इन लड़कियों में आया है। हमारे एक आरडीजी की लड़कियां हैं, एक विश्वास नहीं होता है मुझे, ये फर्स्ट टाइम इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनकी बढ़ी है। हम भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेते हैं हमारे लेवल पर ये बजाज फिनसर्व का प्रोग्राम करने के बाद उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, आए हैं, आज हमने खुद मैंने सुना है। और मैं हमारे प्रेसिडेंट सर को भी हमारे मीटिंग में बोलते रहता हूँ कि सर बजाज फिनसर्व इज टेकिंग सो मच efforts, they are taking hard efforts for shaping career of our students। तो वो भी बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने भी कहा है कि भाई मेरे ओर से भी उनको धन्यवाद दीजिएगा कि इतने अच्छे से वो प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। हमारी परसों सर मीटिंग हुई, उसमें सारे बच्चों को उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया है, अभिनंदन किया उनका। तो सर थैंक यू। और बहुत जल्द इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा कोर्स भी शुरू हो जाएगा। Thank you once again, Siddhant sir, and all team of Bajaj Finserv. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दोज वैल्यूएबल वर्ड्स। और फ्रेंड्स, ये सर ने ही जो है मैनेजमेंट से अप्रूव कराया है कि आपका जो 1000 रुपीज आप पे कर रहे हैं उसमें से 500 रुपीज जो है आपको एज अ रिवॉर्ड जो है, क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स दिए हैं, वो आपको वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सो दैट्स अ ग्रेट जेस्चर बाय द कॉलेज एंड यू शुड एक्नॉलेज कि आपके कॉलेज भी आपके बेटरमेंट के लिए कितनी इंक्लाइंड है एंड सर अगर कितने एफर्ट्स ले रहे हैं ये सब चीजों के लिए। सो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर दैट जेस्चर। सो मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको ये प्रोग्राम यूटिलिटी लगता है तो और आप इंटरेस्टेड है तो एक छोटा सा गूगल फॉर्म में शेयर कर रहा हूं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके बियॉन्ड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछिए, मैं वो सभी क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से एड्रेस करूंगा एंड देन वी विल क्लोज फॉर द डे। फाइन? Any questions, you can unmute yourself and ask the questions, and you can even put up in the chat box anything you would like to ask. Meanwhile, I would like to invite Vaishnavi Dhumade to propose the vote of thanks. At that time, students. Ma'am, please unmute yourself. Okay. So thank you so much. Sir, meanwhile, I think I have to invite Vaishnavi Dhumade so that she can propose the vote of thanks for this session and students can fill the Google form. Simultaneously, students can fill the Google form. Is it okay, sir? Okay, thank you. Vaishnavi? Good morning, everyone. To the one and all present here, the respected Dr. Ambadas Pandey sir, Head of Department of Commerce, Resource Person respected Siddharth Agrawal sir, Trainer Alik Chaurasia sir, and Coordinator respected Dr. Rupa Gupta ma'am, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries. On behalf of RDG College, I extend a warm welcome to the people in this gathering. I could like to express my gratitude to all respected delegates of the webinar for the presence and contribution to make this webinar a great success.
extend my gratitude to our honorable principal, Dr. Devendra Vyas sir, for providing us a great opportunity. A special thanks to Dr. Ambadas Pandey sir, a head department of commerce, providing immense support and cooperation to make this webinar successfully. And extend my gratitude to Siddharth Agrawal sir, resource person, to deliver his talk to create awareness about CBPFI and enlightening us with their knowledge, inspiring and encouraging us with your words on this event. On my behalf, I extend very heartily vote of thanks to Alec Chaurasia sir, our trainer, for boosting our confidence and knowledge. And also I must thanks to our coordinator, Dr. Rupa Gupta ma'am, for her support and organizing a webinar session, who connect with us every time for working hard for a past few days to make this webinar successful. Also, I like to thank all the students present here for paying your attention and active participation. Once again, I must thank RDG, Bajaj Finser and CBPFI for this great opportunity. That's all. I could end my vote of thanks here. Thank you. Thank you so much, Vaishnavi. So have you shared the Google form? Yes, ma'am. I have shared the Google form on the chat itself. Students can just fill in that Google form. Okay. So I would request all the students to just fill up this Google form so that we know who all are interested in this program, and accordingly we would take up this things further. And इसमें कैसा है ना बच्चों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है. जैसे ही हमारे पास जो है 50 रजिस्ट्रेशंस आ जाते हैं, हम रजिस्ट्रेशंस क्लोज कर देंगे और इमीडिएटली बैच स्टार्ट कर देंगे. तो आप जितने जल्दी जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है आप इसे पे कर देते हैं कॉलेज को, उतना बेटर होगा. योर रजिस्ट्रेशन वुड बी कंफर्म एंड you would be able to participate in this program. So देर मत लगाइए, वैसी पैंडेमिक में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो अभी हमें तो जस्ट बहुत सजग रहना है और जल्द से जल्द ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना है. और जस्ट मैं इसी तरह से कंक्लूड करूंगा गर्ल्स, अभी जैसे पैंडेमिक में साल भर से आप 1.5 साल से जो घर में हैं, और घर में रह के मुझे बताइए आपने थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन किया है कि नहीं किया है? यस, वेट पुट ऑन किया है. तो अब आपकी बारी है आपके रेज्यूम पे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करने की. तो ये जो CPBFI है, that would put a lot of weightage on your resume. So put some weight on your resume and go for the certification and create a difference in this today's competitive world. Fine. So chaliye, that's it from my end. Thanks for being such a nice audience and wish you best of luck and looking forward for a lot more interaction with you guys in the coming batch for CPBFI. Right? When will be the batch will be held? See Apurva, immediately जैसे ही यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, जैसे 50 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, विदिन अ वीक हम जो है वो बैच स्टार्ट कर देंगे. सो इट वुड बी अ डेली 2 hour इंटरेक्शन. सो 45 डेज में आपकी ये पूरी बैच कंप्लीट होंगी. ओके, वेयर टू डू पेमेंट? मैम पेमेंट के बारे में एक बार प्लीज आप बता दीजिए कैसे करना है इन्हें पेमेंट. आपको हम कॉलेज का अकाउंट नंबर शेयर करेंगे. हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी आपको. ओके, आई थिंक आप सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो ऑलरेडी. ओके, सो दैट्स द थिंग फ्रॉम एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ. इफ एट ऑल यू हैव, जैसे कभी कभार बाद में भी कुछ थॉट आता है, सो यू कैन एनी टाइम मैसेज मी ऑल्सो and connect to me regarding any query you have pertaining to this classes in any way. Fine. So I have shared my number also. You can take down my number, save it with you, and you can anytime connect me on WhatsApp if at all you have any query pertaining to this course. Okay. And please fill that this Google form so that we know who all students are interested to join this program. Batch मैंने कहा ना नेहा की, जैसे सपोजिंगली आज है 3rd of September, हम ये रजिस्ट्रेशन जो है नेक्स्ट 3-4 दिन में क्लोज कर देंगे और विद इन अ वीक जो है बैच स्टार्ट कर देंगे. तो टेंटेटिवली आप समझ के चलिए 15 तारीख के आसपास जो है हम बैच स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, 15 सितंबर से टेंटेटिवली वी विल बी स्टार्टिंग. थैंक यू सो मच. या चलो, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. थैंक्स फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस
Thank you, ma'am, for providing this opportunity, and thank you, Ambadas sir, for providing this platform to discuss with the students. Thank you, sir. So, Thank you very yeah, much. chalo, thank you, see you, thank you the entire CPPFI Thank you, team, sir. Bye, sir. and thank you all these my previous students, Achal, Madhuri, Chaitali. Thank you, sir. Thanks for giving your valuable time to us. Thank you, sir. Thank you, Siddhant sir. Sir, thank Thank you, you. Alek, Thanks for to you, being sir. with us. Thank you, But sir. Bye. Alek is also there. Thank you, Alek, for being with us for throughout the journey. So thank you to all the participants here. Pleasure, sir. Okay. Pleasure. So I just would like to say thanks to all my students, who participated and give the testimonies today. I'm so proud of them. Great work, girls. Thank you. Thank you, Yes. everyone. Thank you, sir. Not just we Thank you, all Alek, sir. we all are proud, and even the college is also proud for these students now. Isn't, sir, you it so is so much, sir. happening to see the way these girls are delivering, the level of confidence. That's great. Yes. Great. Chalo, thank you, you all guys. Wish you all the best in all your future endeavors. Okay. Thank you, Tata. Siddhant sir. Thank you, Thank sir. you, Bye, principal sir. sir. Thank you, ma'am. Have a nice Thank you, girls. day. Bye, sir. Have a good day. Have a good day, all of you. Take care.